but some are more special than others because they are gifted with special children. They have a unique set of joys and struggles and have probably redefined motherhood. Our endeavor to bring them on the forum is so that we can understand their journey and applaud them. I request you all to welcome these mothers with the loudest applause. Our first panelist is Dr. Jasmine Chopra, mother of 14-year-old Daksh, who is on the autism spectrum. She is an anesthesiologist presently working in pharmacovigilance so that she is able to pay adequate attention to her son. We can hear her son speaking right behind me. The next panelist is Sharmita Bhinder, a successful entrepreneur, a trainer, mentor, coach, who runs an NGO, Empower, for special children. Her son Manav is also on the autism spectrum. Our last panelist of the day is Manju Sachdeva, a speech and language trainer who left her job as an educator to be there for her younger daughter Dia, who is hearing impaired. Talking to these awesome, strong ladies is Sarika Dhupar, a doting mother of 2 young boys, who is a creative writer by heart, a researcher by passion, an academic by profession, and a crusader of social issues. So, a big round of applause for these awesome mothers. Now, Sarika ma'am, the stage is yours. We're waiting to listen to you all. Rita ma'am for the session, and thank you so much ma'am for giving us this opportunity to come out with our emotions. So, happy Mother's Day to all of you in advance, all the mothers, beautiful mothers sitting here, all the daughters and all the sons. So we all need to celebrate mothers. And here I have with me in the banner, on the banner we have beautiful, special moms. Actually I call them super moms. Rita ma'am has already introduced them. She's given a vibrant introduction of the work profile. But I would like each one of them to introduce themselves as they perceive themselves in the capacity of a mother. So first I ask Dr. Jasmine Chopra, mother of Daksh Chopra, to introduce. Daksh mom will introduce. Okay, great. Dakshriya Hanihana, mommy is going to talk about. So, hello everyone, I am Jasmine and I am proud mother of Daksh, as you can all hear him. I love you, Lord Bacha, and as a mother, I would say that thank you Daksh for being in my life, because that is why I am a mother and I am here today. And I have been very lucky to be his mother, because I have evolved as a much better person, a much stronger and a confident person being his mother. I have learned a lot from him. He's been my best teacher, and in fact, I have not been lost in motherhood. I have evolved in motherhood. I have grown in motherhood. Each and every day. And it is said that when a child is born, जब एक माँ अपने बच्चे को first time हाथ में लेती है ना, she instantaneously starts loving the child. Whether the child is neurodiverse, whether he is neurotypical, he is handicapped, उसने बड़ा होके terrorist बनना है या scientist बनना है, उसको फर्क नहीं पड़ता. So the mother just loves the child the very first moment. And as a mother, I think I am a loving and a caring mother, but a bit strict mother. With him, I have learned to spend each and every, I have learned to
celebrate in fact each and every happy moment of the life rather than waiting throughout the life for just big moments. So each and every day we have new experiences, and each and every day we are celebrating something. And before he was diagnosed, from a person, I was a person who used to beg God every day for everything. भगवान आज ये कर देना, आज ये जॉब की ड्यूटी, आज ये हो जाए, like a beggar. And after he was diagnosed, my perspective changed so much that actually I am thankful to God each and every day. I have stopped praying. I am just thankful to God. So much. And I aim to give the same respect and understanding to him as I have received from my mother, who's also here. She is Satya Mira. And thank you so much, Mom and Dad, for all that you have done. Whatever I am today, I am because of you. And happy Mother's Day to you and all the lovely mothers over here. So thank you so much. अब हमारे इसमें है मानव सिंह भिंडर की मॉम शर्मिता भिंडर। तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप मातृत्व को कैसे देती हैं? How do you describe yourself as a mother? Good evening, everybody. My son is a high-functioning autistic child, and Manav at the moment is going to be 22 years. I have a very different take on motherhood. Probably I had a very different mother at that moment. I didn't realize. But I was never, I'm an only child, and I was raised as a human being. I kind of really grew up in a very gender-free environment where there wasn't a difference between girls and boys. I am a Bengali, and I got married into a Jatsik family where it was supremely patriarchal. And that's the time I realized, oh my God, there is a difference between men and women. And so when I had a special child, luckily it was a boy. I had 2 boys, so that was an advantage. And Manav was not able to move his lower body. And we were told that maybe gross motor and maybe brain issues. Long story. Today, he did his 12th from Vivek High. He was one of the few autistic children in India to take up PCM in 12th. He took psychology as an additional subject with computers to understand his own brain. And he taught all over India, though these things don't matter to me, but I'll explain why. That with Manav, I learned that every human being has ability. And if we focus on ability, then life becomes different. So I think that's where motherhood of a special child changed me. That I realized that I have to focus on my ability, my elder son's ability, and we all will be much happier. That's so wonderful. और हमारे साथ हैं दिया। दिया मेरी स्टूडेंट है, अभी उसने बोर्ड का एग्ज़ाम पास किया है और उसके मामा भी हमारे साथ हैं और हम उन्हीं से जानेंगे मंजू सचदेवा से कि उनके लिए मातृत्व क्या है। मदर एज ए मदर मैंने इसकी डिसेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कि इसको तो मैंने नॉर्मल चाइल्ड ही बना देना है। एक दिन मैंने मन में ठान लिया था जब भी ये, क्योंकि ये इतनी क्यूट थी, इतनी वो इंटेलिजेंट फेस से लगती थी, तो मैं तो इतनी शॉक्ड होगी कि मेरा बच्चा नहीं हो सकता डिसेबल। तो मैंने इसको एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इसको नॉर्मल बनाऊंगी। तो तब से मैं इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ और इसका 100% टीवी लॉस था, मतलब टोटली डेफ। और फिर मैंने इसको इतनी ट्रेनिंग दी, आज ये नॉर्मल बच्चे जैसे बात कर रही है। सिखा के तो मेरे को इतनी इंस्पायरेशन मिली, मैंने दूसरों के बच्चों को भी लेना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा क्यों किसी का बच्चा, मैंने बहुत लो फीस पे अपने घर बुलाने स्टार्ट किए बच्चे।
और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं दूसरों के बच्चों को विदिन 4-5 मंथ बोलना सिखा देती थी। तो फिर मैं अभी थोड़ा टाइम पहले एक बच्चा आया, जब 1 ईयर पहले, तो उसका हेयरिंग लॉस पीछे से, सामने से वो नॉर्मल बोल रहा है बट वो पीछे से नहीं रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा था। तो मेरे को आता था, टेक्निक आती थी, ऑडिटरी ट्रेनिंग की, तो मैंने उसको पीछे से ऑडिटरी ट्रेनिंग दी। मतलब पूरी डेडिकेशन से करती हूँ मैं वर्क, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है मुझे, ये मेरे पैशनेट है। मंजू जी की ये बातें हम करेंगे आगे। हाँ जी। जानना चाहेंगे कि आप क्या कहते हैं। आप अभी आपकी 2 बेटे हैं शायद, है ना? और बड़ी बेटी कनाडा, और दिया जो है ये मेडिकल की स्टूडेंट हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ, आई वांट टू पुट इन हियर कि जो इनका एफर्ट रहा है एज अ मदर, आई टेल यू, अभी बिकॉज आई एम बायोलॉजी लेक्चरर देयर एट स्कूल, और जब प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक्सटर्नल आते हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता होता है जिस बच्चे में कुछ कमी होती है हम पहले से एक्सटर्नल को बता देते हैं, ताकि कुछ भी ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए ना एक्सटर्नल में ना स्टूडेंट में कि थोड़ा उसके लिए ट्रॉमेटिक हो जाए। तो मैंने कहा इसको थोड़ा इशू है हेयरिंग इम्पेयरमेंट का। एक्सटर्नल बुला रही थी 3-4 बच्चे एक साथ, मतलब शी वाज कंडक्टिंग द वाइवा फॉर 4 स्टूडेंट्स एट टाइम, और जब दिया की टर्न आई तो उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया। शी वाज पुटिंग इन जर्नल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, दिया वाज द फर्स्ट वन टू आंसर। और जैसे होते हैं ना, दैट इज लाइक आई एम स्टिल हैविंग द गूज़बम्प, क्योंकि हम हमारा उस टाइम पे जो फीलिंग था, एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, external kept on asking and she kept on answering and she surprised us all. पहली बार मैंने दिया को इतना बोलते सुना था, but this is the thing, and that is why we need to celebrate mothers. All mothers work hard on their kids, but especially the special mothers, yes, they are putting that extra effort. तो आगे बढ़ते हुए मैं बस यही कहूँगी, माँ तुमसे कुछ बातें करनी हैं, जो दिल में दबा रखी वो टीस टटोलनी है, तुमसे जो छिपा रखी वो पर्दे खोलनी है। कभी बेफजूल बेलगाम तुमसे घंटों बतियाती हूँ, कभी तुम्हें कष्ट न पहुँचे जख्म भी अपने छिपा जाती हूँ। यूं तो तुम्हें सब मालूम हो जाता है, मन की नज़र से सब भाप लेती हो, अपने आंचल का सुरक्षा चक्र बना आगोश में मुझे भर लेती हो। मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ तुम सब जान लेती हो। फिर भी माँ तुमसे मुझे कुछ कहना है, कुछ बातें करनी है। माँ मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। एक बच्चा कोई भी हो, बेटा हो बेटी हो, हम सब अपनी माँ से अपने दिल की हर बात कहते हैं, लेकिन कभी हम बहुत कम ऐसा अवसर आता है जब हम ये सोचते हैं कि हमारी माँ को भी हमसे कुछ बातें कहनी हो सकती हैं। हमें उनकी भी टीस को टटोलना चाहिए, उनके भी दर्द को समझना चाहिए। जब ये सेशन मैं ले रही हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन मांगा है एज मदर्स अपने तीनों पैनलिस्ट का, तो साथ ही मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अपना भी। आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 2 हैंडसम लविंग केयरिंग सन्स, लेकिन उस कैपेसिटी में आज इस सेशन को मॉडरेट नहीं कर रही मैं आज इस कैपेसिटी में सेशन को मॉडरेट कर रही हूँ, वो ये है कि मैंने बहुत चाहा कि अपनी माँ के दिल का हाल भी जान सकूँ। आई एम अ स्पेशल डॉटर टू अ वेरी स्पेशल सुपर मॉम। माय मदर शी इज रिटायर्ड PCMS डॉक्टर, और उन्होंने राजस्थान से पढ़ाई की है, और राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के बहुत छोटे कस्बे बुंदेलखंड से बिलोंग करती हैं, वहाँ पढ़ी लिखी, जहाँ लड़कियों के लिए स्कूल भी नहीं हुआ करता था। तो मेरी नानी who happened to be a headmistress, उन्होंने एक बॉयज स्कूल में उनको पढ़ाया, और फिर उन्होंने अजमेर से she did her MBBS। उसके बाद my नानी she was a single mother, तो उन्होंने इंटर्नशिप के बाद ही मेरी मदर की मैरिज कर दी। she was under bond, तो राजस्थान में ही वहीं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में ही गांव में जॉब कर रही थी। आई वॉज बॉर्न देयर, और एक साल जब मैं बॉर्न हुई तो एवरीवन, मतलब माय मदर टेल्स मी ओनली दिस मच,
I have a very little information about my journey, the initial journey. तो ये कहती है कि जो लोग देखते थे वो यही कहते थे कि परी हुई है, बहुत सुंदर बच्ची हुई है, तुम, और नानी भी कभी कभी प्यार में कह देती थी कि नजर उतार दो, तुम इतनी काबिल नहीं जो तुम्हें परी जैसी बच्ची हो, इसको संभाल कर रखना। लेकिन 7 साल की उम्र में मुझे पोलियो वायरस का अटैक आया एंड आई गॉट इन्फेक्टेड विद पोलियो। तो एक बहुत खास बात है क्योंकि नानी एक ऐसे गांव में गई थी, कस्बे में, जहाँ गर्ल्स को पढ़ाना मतलब ही नहीं होता था। वहाँ वो शुरू डेंटिस्ट, मदर डॉक्टर थी, तो सब लोग बहुत प्यार करते थे। मैं वैसे ही बहुत खास थी, लेकिन फिर स्पेशल टैग के साथ आ गई, जिसे अंडर कोट्स कह सकते हैं, स्पेशल डॉक्टर ऑफ अ स्पेशल मदर। माँ ने बहुत प्यार से पाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है मुझे, बहुत सशक्त महिला के रूप में मैं उभरी हूँ। इस बात को मैं गर्व से कहती हूँ। लेकिन स्ट्रगल्स तो रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं। उन स्ट्रगल्स को मैंने पास से देखा है, उनकी आंखों में देखा है। ज़्यादा उन्होंने कभी कहा नहीं, ज़्यादा मैंने पूछा नहीं, उन्होंने कहा नहीं। तो आज मुझे लगा मुझे आप सब से बात करनी चाहिए, उस इमोशन तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए जो शायद मेरी माँ ने भी झेले होंगे, जो स्ट्रगल्स। तो अब आपको ये पूछूंगी, हर लड़के का एक सपना होता है कि मैं बड़ी होंगी, मेरी शादी होगी, और भी होता है, बहुत सारे बच्चे होंगे। आज के टाइम में हम कह देते हैं ये सपना नहीं है, हम प्रोफेशनली ग्रो अप करना चाहते हैं, पर ये भी रहता है। तो जब हम एज यंग वुमेन आप सोचते थे कि हाँ हमारी मैरिज और हमारी किड्स, आपकी फैमिली के बारे में आपका ख्याल रहा होगा, तो हम एक बहुत नॉर्मल लाइफ की कल्पना करते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, when you first came to know about your child being differently abled, तो वो इमोशन क्या था आपका? तो मैं आप ही से शुरू करूँगी, डॉक्टर जैस्मीन। यस, आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम पहले इमेजिन कर रहे थे होते हैं, वी ऑलवेज इमेजिन अ वेरी नॉर्मल लाइफ फॉर अस। सो definitely we have a good life, but yes, a very different life. So my son was diagnosed with autism at the age of 3 years. उस टाइम पे तो definitely at that instant, I would just like to explain that with an example, that it actually feels that your glass house of dreams is broken and each and every piece is piercing your heart. At that moment, yes, it does feel. But then, luckily, I was very lucky enough to have a support of my parents, my family and friends who were always there to boost up my morale. And one of my friends guided me to Action for Autism, where I have also undergone myself a parent training of special education. I am a special educator myself. I got the whole training, and उस time मुझे yes, it was a month's time when I was disturbed, but within that time मुझे लगा कि now I don't have any more time to brood and waste. And जैसे at that time I used to hear ब्रह्म कुमारी, इसका नाम शिवानी। सो आई वुड जस्ट लाइक टू कोट कि उसकी एक बात मुझे बहुत दिमाग में जैसे लग गई, जैसे इट फेल्ट, मतलब इट रियली अफेक्टेड मी अ लॉट। सो शी सेड कि इट इज़ पॉसिबल फॉर द पेरेंट्स, कि बहुत पेरेंट्स होते हैं वो खुद भूखे रहते हैं, दे डोंट हैव मनी बट दे फीड देयर चिल्ड्रन। इट इज़ पॉसिबल फॉर द पेरेंट्स कि वो खुद अनपढ़ हैं but they will educate their child, they will take it. But it is not possible for a parent to give happiness to a child if the parent is unhappy. You can only give happiness to your child if you are yourself happy. And frankly telling you, this quote turned me around. Because why was I brooding that whether my child will be happy or not? So yes, this definitely turned me around. And luckily there is one quote, smile and the world smiles with you, cry and you cry alone. We take it in a very negative and a selfish way, but many a times it is very positive.
I found people who refused to cry with me, and in turn, I learned to smile with them. It was that then definitely I started working a lot on my child. He was almost non-verbal at that time, and at least I can pat on my shoulder that I really worked quite hard for him, and in a very systematic way. I got a very good guidance. Actually, that is very important because autism is also a business in India where the parents do get very wrong guidances also, and they just go in and spend, waste their money, waste their time in a hope कि एक दिन मेरा बच्चा so called normal हो जाए. First of all, there is no definition of normal. There is no definition of normal. So I am very well prepared, and first challenge is we. If someone asks me what challenges I have faced, हर न्यूरोडाइवर्स के बच्चे में सबसे पहला चैलेंज हम खुद होते हैं, हमारी एक्सेप्टेंस होती है. It is not if we start accepting and if you respect your child, the society will respect your child. So instead of focusing on the fact or speaking, society should do this, society should do this, ये वो, government should do this, government should do that, start working on it. Government India में क्या करती है, क्या नहीं करती, no need to discuss. As a parent, what you can do, and for that we do have a parents association also who we support each other, we love each other. So definitely all that helped, and yes, we are growing along with children, and as Temple Grandin has said that it is very important to focus on what a child can do rather than what a child cannot do. So even for the parents of neurotypical children, I would please suggest don't make a frame of your life and your pictures child. इस फ्रेम में हमारे बच्चे को और हमारी जिंदगी को फिट होना चाहिए. That is the only cause of depression. And ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स को ही डिप्रेशन है. In fact, it has been a survey कि there are very few parents of special children who are in depression. Depression is not common among parents of special children. क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी तूफान की होती ही नहीं कि हाँ जी मेरे बेटे को तो जी बनना चाहिए, ये ना बना तो मैं तो गया, मैं तो गई. We also small happinesses of life. I would give you an incident. My son had in autism काफी sensory difficulties आती हैं, height issues आती हैं. So we had issues sitting on the cot. Height भी होता था. So we worked on it. And we do have a lot of visual strategies for it where we can slowly move towards it. And he is doing very well in the academics and all also. But autism के लिए पढ़ाई is not only academics. See, I work on his toilet also कि कैसे ऊपर जाने, उसने कपड़े कैसे ऊपर करने हैं, because he had difficulties in his hair cutting. He had difficulties in his nail cutting. He still has that. Few of them, yeah. Brushing. So for us, padhai is also this, and in fact this is the most important. So he was 6 years of age when he at 2-3 years of age he used to sit. उसके बाद उसकी sensory difficulties बढ़ गई. So at 6 years of age, when one fine day he sat on bed, me and my husband were so happy that he brought pastries and patties, and we all literally had a party. So I mean, it is almost an every day we can have a party. So we don't wait for having a party. And my son is such a foodie that I cannot tell you. So even I am gaining weight along with him because we have to eat a lot outside, and we really thank you. बहुत सुंदर बात कही है आपने डॉक्टर जैस्मीन, क्योंकि देखिए बात यही आ जाती है कि उन्होंने एक इतनी सुंदर बात कही कि हम लोगों के सपने बड़े हैं ही नहीं. हमारे सपने है ही नहीं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, IIT करेगा, ये बाहर जाएगा. हमारे सपने छोटे छोटे. क्या वो बैठ रहा है, क्या वो
फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, तो जितने छोटे सपने होंगे खुशियाँ उतनी जल्दी अचीव होंगी। So that does not mean that it is something less. It is very good if the child is successful, doing very well, but the main aim is independence in their life. So in whatever way they are gaining independence or happiness, there is no work which is small, there is no work which is less. In whatever way, if a person is happy, if a neurotypical child is happy doing IIT, wonderful. It's actually great, and parents have to work on it. Like I would have that. But if my child is happy and independent, not only happy कि वो कहे कि हाँ जी मैं तो सारा दिन टीवी देखना चाहता हूँ, not that. But I also have to make him independent. But if he is independent doing small work and he can handle himself very well in life, good enough. Although we do have challenges, like our job opportunities are different, we don't have special schools at all places, so we cannot move around. I am an anesthesiologist. I chose to leave my dad's career and come to a job where I am doing home working in research. Whereas once upon a time I used to love my anesthesia. But I won't say that मैंने sacrifice किया. It was my choice and I am happy in it. That's great. It is not a pressure, it is not a sacrifice, it's my own happiness. So I am not burdening my child with मैंने तेरे लिए ये किया है, मैंने तेरे लिए वो किया, मैंने जो किया है अपने लिए ही किया, because that gave me happiness, so it's okay. So we move to okay, हम आपके इमोशंस की बात भी करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि आपकी फीलिंग्स कैसी हुई हैं, how have you dealt with those? जनरली क्या होता है, आई थिंक ये चीज़ मैं 10 साल पहले डिस्कस करती तो मेरा टेक कुछ और होता और आज की डेट में टेक कुछ और है, बिकॉज यू ग्रो. So sometimes as a special parent or a special mother especially, you become challenged because आपका बच्चा एक प्रोजेक्ट बन जाता है जिसमें आपको विन करना होता है और आप एक पागलों की तरह रेस में दौड़ने लगते हैं जहाँ पर आपको थेरेपी करनी होती है, 4 तरह की क्लासेस करनी होती हैं, डॉक्टर्स के पास जाना होता है. सो वो कहीं ना कहीं आप सब कुछ छोड़ के वो बच्चा आपका जुनून बन जाता है. So to the younger parents, the first thing I tell is that you have to live along with that child. अगर कहीं ना कहीं इस जर्नी में आप खत्म हो जाते हो या आपकी शायद हार्श वर्ड है आपकी मौत हो जाती है तो आप अपनी बच्चे को जिंदगी दे नहीं सकते हो, है ना. सो आई थिंक इनिशियली जब मुझे पता चला मानव को ग्रॉस मोटर है और मे बी मेंटली चैलेंज्ड भी वो शायद कभी चल ना पाए बिकॉज डॉक्टर्स समटाइम्स हैव टू टेल यू द रियलिटी. So I had this sofa in my room where I sat continuously for 2 days. I had lost my parents very early. I had lost a lot of pregnancies, and as we say, we are looking for perfection in life. तो मेरा बच्चा किसी कारण से perfect नहीं था और शायद मैं भी गिल्टी थी कि पता नहीं कुछ कर दिया है मैंने कि मेरी वजह से the child is like that. So 2 days I did not move at all from that chair. And after 2 days I realized कि जैसा भी बच्चा होगा चलेगा नहीं चलेगा, IQ लो होगी हाई होगी, हम जिंदगी जीना नहीं छोड़ेंगे. हम पार्टीज में जाएंगे, हम तैयार होएंगे, हम घर अच्छा रखेंगे. हाँ एज IIT और ये सब करियर नहीं हो सकता, हम खुशी से जी तो सकते हैं. So that is the motto I started the NGO with. So we have a lot of fashion shows और because कहीं ना कहीं मैं जी और साथ साथ that affected the child positively. The whole household was positive. And then secondly, even positivity is overrated. है ना, हमें इतना पॉजिटिव और इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और इतना अच्छा वही ना कहीं वो भी आपकी ईगो को फीड करने लगती है जब सब कहते हैं कि आप बड़ी अच्छी मदर हो, आप तो सुपर वुमन हो. नहीं, I'm equally broken, I'm equally lousy. Ask my children. You know, probably they say, and I'm a spiritual healer. So one day I was screaming at my son. तो my son said कि खुद तो आप इतना preach करते हो कि relax रहा करो, अब क्या हुआ है ना. So I told him, see, if I was Sadhvi sitting with 40 chelas, I would be calm all the time. Here I am a mother, and now Bengali turned Punjabi, तो NCVC भी चलेगा, पापड़ भी पड़ेंगे और सब कुछ होएगा. ठीक है, तो जिंदगी हम नॉर्मली जिएंगे. तो जब हम कहते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें गालियाँ नहीं देनी चाहिए,
हमें सब समय स्वीट रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए. प्लीज, इट इज नॉट पॉसिबल एज ए ह्यूमन बीइंग. वी ऑल हैव दिस एक्सट्रीम सुपर पॉजिटिविटी आउटसाइड. दिस इज अ गार्ड दैट वी पुट ऑन, राइट? एंड यही ब्रेक करते हैं स्पेशल चिल्ड्रन, क्योंकि वो जैसे हैं उनको वो चीज करनी ही नहीं आती है, राइट? सो जिंदगी जीना नहीं छोड़ा. मैंने कोशिश करी कि मैं जिंदगी कहीं ना कहीं जीती रहूं, उसको पकड़ती भी रहूं. और मैं रोई भी बहुत, लोगों के सामने शायद ना रोई, बट बच्चों के साथ अच्छा बुरा सब शेयर किया. एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी about when my children were about 15-16, I realized I was this super mom, super house, super looking, super children, super friends, super entertainer, but it was killing me, this super womanness. So I suddenly decided I'm no longer going to be that super. तो एक दिन हमने घर में बैठ के, me, my husband and both sons, I said the house is divided around 4 people, right? और सबकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी 25-25% है. चलो मैं माँ हूँ, 50 कर दूंगी, बट बाकी एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट. सो दैट डे आई फोल्डेड माय हैंड्स ऑफ द सुपर वुमन परफेक्ट पर्सन. घर गंदा रहा, चीजें नहीं हुई, हमने बहुत दिन बात नहीं करी, बट इससे एक चीज हुआ, हर पर्सन ने अपनी कैपेसिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू हुई. सो मेरे बच्चों ने घर आते हुए कहा, मम्मा खाना बना है, बना ले कि मंगवा ले. So ये चेंज हुआ. तो ऐसे खाना उठा के कहते थे ये क्या बनाया है, राइट? सो आई रियलाइज कि जब हम इक्वालिटी को विमेन कहते हैं ना, तो एज मदर्स हमें वो घर में अप्लाई करना पड़ेगा. तो मैं बहुत दिन है जो किचन में नहीं जाती हूँ, बहुत दिन है सफाई नहीं करती हूँ, बहुत दिन है मैं बेड नहीं बनाती हूँ, मैं गुस्सा भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हम सब वैसे ही अंदर घुस जाते हैं खुशी खुशी. देखिए, आज ही मेरी बात मेरी मदर के साथ भी हुई. मेरा बेटा वापस आया है कॉलेज से समर ब्रेक के लिए, तो ऐसी बात हुई, तो कब आएगा मुझसे मिलने, कब हमारे पास रहने आएगा. मैंने कहा वो उसके अलग लाइफ स्टाइल है, उसको मूवीज देखनी है, एक्शन मूवीज देखनी है, अगर आप उसके साथ देख सकते हो वो इंजॉय करेगा, वरना नहीं आएगा. तो वो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं. अगर मुझे उसके साथ 2 घंटे 3 घंटे स्पेंड करने, तो आई वॉच वॉट एवर एक्शन मूवी ही हैज टू वॉच. वो कहते नहीं, हम तो ऐसा करेंगे, जो वो कहेगा खाना है, जो वो बनाने को कहेगा हम वो बना देंगे, और उस तरह से हम उसको विल टेक केयर ऑफ इन दैट केस. मैंने कहा वो तो हमने 3 छोड़ दिया बहुत पहले. हमारे ये होते हैं जिस टाइम हम खा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं तुमको खाना है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अगर उसको मिडनाइट तक जागना है तो खुद बनाता है, खुद खाता है. तो मदर्स आर एक्चुअली चेंजिंग एंड दिस थिंग्स आर एक्चुअली हेल्पिंग अस आउट. उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी हाउ यू हैव डेल्ट विद द होल सिचुएशन. मुझे बच्चा इतना प्यारा मिला था, बट जब 2 ईयर की एज में मैंने पता ये सब देखा कि इतना ज़्यादा लॉस है, तो मैं पूरी डिप्रेस हुई. तो पहले तो हुई, बट इमोशनली मैंने इसको अप किया, जॉब भी छोड़ दी, फिर मैंने पूरा इसके ऊपर डेडिकेशन वर्क किया. तो मेरे को एक इतनी अच्छी फ्रेंड मिल गई ना अपनी बेटी के रूप में, कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ हो गया. हम दोनों ने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया पूरी लाइफ, कि मेरे को किसी और फ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, कि घर में ही मेरे को जो मेरी फीलिंग है मैं उसके साथ शेयर कर रही हूँ, जो उसकी फीलिंग है वो मेरे साथ शेयर कर रही है. ऐसे उसकी स्पीच थेरेपी भी हो रही है, और हम इमोशनली एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हैं. तो हम दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई. टाइम बाय टाइम मैंने इसकी प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ ध्यान दिया, कि प्रॉब्लम तो समझना ही नहीं. ये चीज़ मैंने सीखी लाइफ में इसके साथ रह के, कि अगर चंडीगढ़ जैसे शहर में, जैसे मेरी फ्रेंडली नेचर है, मैं छोटे शहर से आई हूँ और मैं बड़ी सोशल नेचर की थी, तो मैंने कहा यहाँ तो कोई मुझे मिलता ही ना, अगर दिया ना होती तो मैं किसी के साथ अच्छी तरह टाइम ही ना स्पेंड कर सकती. जैसे इसकी नेचर है वैसी मेरी नेचर है, जैसे मेरी नेचर है, हम एक दूसरे के साथ इतना अच्छी फ्रेंडली, मतलब ऐसा बॉन्ड मिलना ना मुश्किल है. एक बंदा भी मिल जाए घर में आपको, तो आपकी पूरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है ना. जो मैं अपने मन की बात है पूरी शेयर इसके साथ कर लेती हूँ, और जो इसके मन की बात है पूरी शेयर मेरे साथ. इवन डीपली बात भी ये मेरे को बता देती है, मैं अपनी इसकी बात बता देती हूँ. तो ऐसा बॉन्ड नहीं मिल सकता लाइफ में, और जिसको मिलता है वो
गॉड गिफ्ट का ड्रीम होता है, वो मेरे को इसमें मिला। बहुत बढ़िया। तो हमारी जो बातचीत है, क्योंकि रीटा जी यहाँ पर आ गई हैं, तो मुझे समझ में आ गया तो फाइनल करने का टाइम है ऑब्वियसली। तो बस यही कहूँगी कि जब हम सुपर मॉम्स या स्पेशल मॉम्स की बात करते हैं और स्पेशल किड्स की बात करते हैं, तो बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए और अपनी ज़िंदगी भी बेहतर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि जो लिमिटेशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए। अक्सर क्या होता है, हम भागते हैं, हम एस्केपिज्म में रिलीफ ढूंढते हैं, और जैसे ही हम अपनी प्रॉब्लम से, रियल प्रॉब्लम से भागना शुरू करते हैं, तो ना तो हम बच्चे की हेल्प कर पाते हैं और ना खुद की, और ना समाज में ही हम एडजस्ट हो पाते हैं। तो ये 2-4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को वाइड अप करती हूँ। ये दर्द मेरा मुजरिम है, महबूब भी मेरा है यही, ये दर्द मेरा रहनुमा है मेरे सुनेपन को राहत भी। यूं भी जो बस में ही नहीं उसकी फिक्र क्या करे, फिक्र करने से क्या ये दर्द कम हो जाएंगे। आओ इस फिक्र की मस्त मॉकटेल बनाकर पिए, जिंदा हैं तो क्यों ना फिर हम जिंदा दिली से जिए। Thank you so much, Anna. Thank you so much. And please, loudest round of applause for this